اسلام کے ہاتھوں ایران اور دوسرے نئے ممالک کی فتح کے بعد خلیفہ کی طرف سے ان علاقوں کے امور کو چلانے کے لیے حکمرانوں کو معین کیا گیا۔ مدائن ان شہروں میں ہے جس کے حکمران دوسرے خلیفہ کی طرف سے معین کیے گئے تھے، لیکن وہ عوام کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس لیے دوسرے خلیفہ نے مجبور ہو کر علی ابن ابی طالب سے مشورہ کرنے کے بعد سلمان کو حکومت سونپ دی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خدا کا سلام و درود ہو اس کے پاکیزہ اور برگزیدہ بندے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ پر۔ اما بعد، خدا بندے بزرگ نے جس طرح وعدہ کیا تھا ایران کے وسیع ملک کے دروازوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا اور ایرانیوں کو اسلام کی ندا اور دعوت کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ چیز ان کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات تھی۔ اس وقت خلیفہ مسلمین کے فیصلے کے مطابق اور اس حکم کی بنا پر تم اے سلمان مدائن کی حکومت کے لیے بطور حاکم مقرر کیے جاتے ہو، کیونکہ تم بھی اس علاقے کے باشندوں کی مانند فارسی بولتے ہو۔ فارس کے لوگ تمہارے ساتھ زیادہ یکسوئی کا مظاہرہ کریں گے۔ خدا تمہیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی راہ میں کامیاب اور فتح مند قرار دے۔ مدائن کے رہنے والوں، مدائن کے رہنے والوں، میری بات کو سنو، میری بات کو سنو۔ یہ حکم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی جانب سے ہے۔ مدائن کے رہنے والوں، میری بات کو دھیان سے سن لو، میری بات کو دھیان سے سن لو۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ابا جان، جو کہا صحیح ہے۔ ابا جان، ہاں ابا جان، سلمان مدائن کے حاکم بن سچ گئے۔ کہہ رہے ہو تم؟ ابھی میں نے قاصد سے یہ بات سنی۔ خدا کا شکر ہے، کتنا اچھا انتخاب ہے۔ تم نے کہا سلمان، نام تو کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، لیکن اب تک ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھا ہے تم نے؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ کہاں دیکھا؟ مدائن کے محاصرے میں دیکھا ہے تم نے؟ مدائن کا محاصرہ؟ ہاں، یہ وہی سلمان ہیں جو تیرتے ہوئے دجلہ پار کر کے آئے تھے تاکہ ہمارے لیے اسلام اور رسول اللہ کے بارے میں بات کر سکیں۔ اور ان کی باتوں نے مدائن کے لوگوں پر کتنا اثر کیا تھا۔ ہاں، اب یاد آیا، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے دانشور ہیں، اور خدا کے رسول سے بھی ان کو خاص لگاؤ تھا، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے انہیں لقمان حکیم کہا ہے۔ کتنا خوبصورت قیاس ہے۔ ماہان، یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں سلمان مدائن کب آئیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک آ جائیں گے۔ تو پھر اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں شہر کو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور جیسا کہ ان کا مرتبہ ہے ہمیں اس کے حساب سے ان کا استقبال کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے 30 فون محل کو تیار کرنا ہوگا۔ میں اپنے پاس موجود بہترین گھوڑا ان کے لیے پیش کروں گا۔ جتنا جلدی ہو سکے محل کو حاکم کے لیے تیار کرو۔ جاؤ، جلدی کرو۔ زادان کہاں ہے؟ زادان، زادان۔ جی مالک، جی مالک، میں یہاں پر ہوں۔ جاؤ، کپڑے والے سے مناسب کپڑے لے لو اور تیار ہو جاؤ۔ ہمیں نئے حاکم کا استقبال کرنا ہے اور ان سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ جاؤ، جلدی جاؤ۔ جی جناب۔
जरा ध्यान से, क्या कर रहे हो बेटे? इन फूलों को कहाँ रखूं? यहीं पर रखो। हमें पूरी उम्मीद है कि वो खुश हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रोज़बे, जी हमारे साथ और देखो कि हुक्मरानों का किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए। अपनी आंखें अच्छी तरह खोलो और जो कुछ के देख रहे हो उसे अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बसा लो। जनाब, महान साहब आ गए। वाह, क्या खूबसूरत घोड़ा है। ये वही घोड़ा है जिसके बारे में मैंने कहा था। देखो, इसकी लगाम भी खालिस सोने की है। हाँ, बहुत उम्दा है। कितना खूबसूरत है। ये बेहतरीन घोड़ा है जो मेरे पास है। मुझे उम्मीद है हाकिम को अच्छा लगेगा। इसकी जीन भी कितनी अच्छी है। मुझे तो कोई दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। वो कितने लोग हैं? कोई बूढ़ा किसान लगता है। तुम्हें बूढ़े किसान से क्या काम है? तुम्हें तो उस काफिले पे नजर रखनी चाहिए जिसमें 10 सिपाही हैं और बहुत साजो सामान है। तो हाकिम कहाँ हैं? क्यों नहीं आए? अरे मेरे भाई सुनो, तुम कहाँ से आ रहे हो? जुनूब की समत से। रास्ते में तुम किसी काफिले, फौज या सिपाहियों से नहीं मिले? नहीं। कैसा काफिला? मदाइन शहर के नए हाकिम सलमान। सलमान? मुझे नहीं लगता कि सलमान इस किस्म की रसूम को पसंद करेगा। क्या तुम उन्हें जानते हो जो इस तरह की बात कर रहे हो? हाँ, मैं खुद सलमान हूँ। हैं? क्या? अली जनाब, क्या आप मदाइन के नए हाकिम हैं? हाँ। आप मदायन के नए हाकिम हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो? झुको, इनका एहतराम करो, घुटने टेक दो। बस करें, उठें। आप लोग मुझ जैसे बंदे के सामने क्यों ताजीम कर रहे हैं? इन बातों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग इस्लाम की बरकत से, खुद पसंद और जालिम हुक्मरानों के तसल्लुत से आजाद हो चुके हो। लिहाजा तुम्हें सिर्फ अपने परवरदिगार के सामने सरे ताजीम खम करना चाहिए। मैं खुदा के बंदों में से खुदा का एक हकीर बंदा हूं। इससे पहले मैं एक गुमराह शख्स था जो कि हाजतमंद और गुलाम था। यहां तक कि खुदा ने पैगंबर इस्लाम की बदौलत मेरी हिदायत फरमाई और गुलामी से मुझे निजात दिलाई और लामोहताज करार दिया। तो ऐ लोगों, सुन लो, सलमान को इस तरह की रसूम की जरूरत नहीं है। मैंने पैगंबर इस्लाम से सादा जिंदगी गुजारना और किफायत शारी सीखी है, और ये बातें किसी की कद्र मंजिलत में इजाफा नहीं करती। ये सिर्फ इस बात का बाइस बनती हैं कि खुद पसंद हुक्मरान अपने आप को खुदा समझें, लेकिन अलबत्ता इसका खमियाजा तुम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐ लोगों, जान लो कि पैगंबर इस्लाम अपनी पूरी उम्र में मुतवाज़े, सादा और किफायत शार रहे हैं। लिहाजा जो भी उनकी पैरवी करता है उसे इसी तरह होना चाहिए। आली जनाब सलमान, हमें बख्श दें। हम ऐसे लोग हैं जो नए मुसलमान हुए हैं और नबी करीम के तौर तरीकों से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। आली जनाब, ये लोग सदियों से बादशाहों के जुल्म और सितम के दबाव में जिंदगी गुजारते रहे हैं, लेकिन जब हमने सुना कि आप हाकिम बने हैं तो हमने ये सारी रस्म अपनी पूरी रजामंदी से अंजाम दी है, और ये कोई नई चीज नहीं है। और हाँ, आपका सब सामान मदायन कब पहुंचेगा? जिन चीजों की मुझे जरूरत है वो मैं अपने साथ लाया हूं। मेरे सरदार, मुझे माफ कर दें, लेकिन आपके पास तो ये थोड़ा सा सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। वो सारी चीजें मैं अपने साथ ले आया हूं जिनकी मुझे जरूरत है। उधर देखो, कुरान, दस्तरख्वान, तलवार, चटाई और पानी से भरी एक सुराही। लेकिन अब्बा जान, हाकिम इतने से सामान के साथ कैसे रह सकेंगे? तुम्हारा नाम क्या है बेटे?
मैं रोज पे हूँ मेरे हाकिम। तुम कितने साल के हो? 9 साल का। तुम्हें मालूम है बच्चे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरा नाम भी रोज पे था। हाँ सच में? लेकिन बाद में रसूल खुदा ने कि जिन पर दुरूद व सलाम हो, मेरे लिए सलमान नाम का इंतखाब किया था। बड़ा खूबसूरत नाम है। जिस दिन के उन्होंने मुझे ये नाम अता किया था, मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। जब भी लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं, हुजूर की याद मेरे दिल में ताजा हो जाती है। आपने मुझे नबी की याद दिला दी, और ये कि आप खुदा के बंदे हैं, और ये कि खुदा के अलावा किसी के सामने सर न झुकाओ। शाबाश मेरे बच्चे, क्या तुम्हें खुदा का बंदा बन के रहना पसंद है? जी हाँ। तो फिर आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला हुआ। अब्दुल्ला? ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल करो। अब्दुल्ला का मतलब तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। यानी खुदा का बंदा। और ये भी तुम्हें बता दूं कि अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम के वालिद का भी नाम था। कितना खूबसूरत नाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम। तुम जो इतने ज़हीन लड़के हो, यकीनन तुम मुझे मस्जिद का रास्ता दिखा सकते हो। मस्जिद का रास्ता इस तरफ से है। ये सब चीजें जरूरतमंदों में तकसीम कर दो। मैं जरूरत के मुताबिक अपना खाना लेकर आया हूं। चलो मेरे बेटे। सच बात तो ये है कि जो भी हमने उनके बारे में सुना था वो सब हकीकत है। आपने हुजूर को देखा है और उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं? मैं उनके बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम नज्जाशी को जानते हो? नहीं, उनको नहीं जानता। हबशा के बादशाहों को नज्जाशी कहते हैं। तकरीबन 30 साल पहले वो भी तजस्सुस में पड़ गए कि हुजूर के बारे में और ज्यादा जाने, आपको पहचाने। और बिल्कुल ये वो जमाना था जब मुसलमानों के गिरोह ने बुत परस्तों की अजियत से तंग आकर हबशा में पनाह ली थी। नज्जाशी ने उनके सरबराह से, जिनका नाम जाफर था, यही सवाल पूछा था। तुम्हें मालूम है जाफर ने उनसे क्या कहा? नहीं। जाफर ने उनसे कहा, पैगंबर इस्लाम हमारी कौम के एक फर्द हैं जो पाक दामनी और सच्चाई के एतबार से शानदार किरदार के मालिक हैं। उन्होंने हमें खुदा की वहदानियत और तौहीद परस्ती की दावत दी और खुदा वंदे वाहिद के अलावा बुतों और हर दूसरी चीज की परस्तिश को बातिल करार देकर मुस्तरद कर दिया। पैगंबर हमसे चाहते हैं कि हम अमानतदार रहें, नापाकियों से दूर रहें, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करें और बुरे कामों से एहतराज करें। जनाब हाकिम, मस्जिद वहाँ है। फिर क्या हुआ? तुम्हें मालूम है वो घर किसका है? कई साल हो गए हैं वहाँ कोई नहीं रहता है। उसके मालिक ने एक और घर खरीदा है। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? किस लिए? मैं चाहता हूँ कि ये घर मैं उससे खरीद लूं। इस घर को? तो क्या आप महल में नहीं रहेंगे? मैंने सोचा था कि तुमने कुछ हद तक मुझे पहचान लिया होगा। रोज बे, तुम उस घर के मालिक को तलाश करने में मेरी मदद करो। इसके बदले में मैं तुम्हें वो बातें बता दूंगा कि जिनको जानने के तुम ख्वाहिशमंद हो। जो हुक्म मेरे आका। अगर तुम चाहते हो कि हम आपस में दोस्त रहें तो आइंदा ये काम मत करना। शायद तुम भूल गए कि खुदा के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ना तुम गुलाम हो और ना मैं खुदा। मुझे माफ कर दें, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। अगर मैं ये घर खरीदने में कामयाब हो गया तो पहली टोकरी जिसको मैं तैयार करूंगा तुम्हें तोहफे में दूंगा। मैंने अपना तोहफा आपसे ले लिया है। तोहफा? ओह अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। आज से मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, 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 अब्दुल्ला।
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे। यहाँ क्या कर रहे हो? आप थके हुए हैं, मैं बाद में आता रुको। हूँ। हाँ? रुको जरा, मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूला हूं। आ जाओ, आ जाओ। अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है कि हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? और क्या तुम्हें मालूम है कि उसको किसने बनाया है? जी नहीं, नहीं जानता। तो फिर आओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाने काबा के बारे में बताता हूं। कई हजार साल पहले खुदा के अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम को हुक्म मिला कि खाने काबा को शानदार अंदाज और शाइस्ता शक्ल में तामीर करें, ताकि खुदाए वाहिद की इबादत का एक मकाम हो। हजरत इब्राहीम और आपके बेटे इस्माइल ने पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी का इंतखाब किया और खाना-ए खुदा की तामीर का आगाज किया। जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम ने खाना-ए काबा की दीवारें खड़ी कर दी, तो आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, परवरदिगार, इस शहर को शहरे अमन करार दे और इसके मकीनों को जो तुझ पर और रोजे कयामत पर ईमान रखते हैं नेकियों से माला माल कर दे। देखते ही देखते वो वादी आबाद हो गई और सरजमीन अरब के बड़े शहरों में तब्दील हो गई। और फिर मेरे बेटे अब्दुल्ला, लोग हर साल दूर और नजदीक के शहरों और ममालिक से खाना-ए खुदा की जियारत के लिए मक्का आते थे। बड़े बड़े काफिले, जिनमें मुसाफरीन की बड़ी तादाद होती थी, वहां आते और खाना-ए खुदा की जियारत करते थे।